Recording. Welcome everyone. सभी को नमस्ते, जय जिनेंद्र. आप सभी का स्वागत है and everyone is welcome in our today's session on the contribution of Jainas in the Jyotish Shastra by Devesh Shah ji. शुरू करना uttering the mantra. To give a background about this session today, we are hosting this session as a part of our project from Ancient Jainism. Ancient Jainism is an initiative to spread awareness on Jain history, heritage, archaeology, literature, culture, and other related aspects. Currently, we are having two projects under which we are undertaking. One is Jain Temple series, in which we create short videos on Jain historical sites which are spread across the Indian subcontinent. And the second is to organize online sessions like these from time to time, revolving around interesting topics with respect to Jain ideology, Jain philosophy, and other fascinating aspects of the Jain world. To know more about our project and initiative, you can follow us on Instagram. Our handle is Ancient Jainism. Or you can follow us or subscribe our channel on YouTube under the same name, Ancient Jainism. So before we begin our session today, I would like to introduce you to our guest speaker, Mr. Devesh Chetan Shah. First of all, I would like to extend my thanks to him to be a part of our panel today. So when I talk about Mr. Shah, he's a postgraduate in Sanskrit with focus on philosophy and logic from Shri Parshuram Bhaut College in Pune, as well as he has done a diploma in Indology. His deep interest in history and genealogy is reflected through his various and lots and activities and projects that he has involved with. He has done an advanced Prakrit course from Sanmati Tirth Research Institute of Genealogy and Prakrit. He has studied ancient Indian coins and manuscripts also. He has published two publications. He has two publications under his name with the title Jain Dharm Tila Stri Devta and Jain Deva Chaitanya Vishwata. So with a very rich background and education and knowledge, we are honored to have him on our panel today, and look forward to learn more about Jain contribution in Jyotish Shastra. So welcome, sir. Welcome, Devesh, sir. And I would like to give you the floor for enlightening us further on this issue. Yes, am I audible? आवाज आ रहा है? Yes, sir. You're audible. ठीक है. मंगलाचरण से आप शुरुआत करते हैं. धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे. तो आज का जो ये विषय है, इसके टाइटल सुन के ही आपको अचंभा होगा कि आज 21st सेंचुरी के अंदर भैया ये ज्योतिष शास्त्र के बारे में कौन बोलने आ रहा है. इसलिए इस विषय की जरा हम पार्श्वभूमि पीठिका हम जरा देखते हैं. मैं सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एंशिएंट जैनिज्म की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया. एक ही मिनट. Sorry for interrupting. तो इस विषय के बारे में बोलने से पहले ये विषय क्यों मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसके पीछे एक कहानी है. छोटी सी है बट बहुत महत्वपूर्ण ऐसी है कि आप सभी को पता होगा कि भारत में बहुत बड़े विद्वान पुरातत्व के होके गए और यही पुणे से होके गए. उनका नाम था हसमुख धीरज सांकलिया और उन्होंने अपना
जीवन चरित्र लिखा और उसके अंदर उन्होंने कुछ ज्योतिष शास्त्र के बारे में अपने विचार प्रकट किए। और ये मैं आपके सामने ये कोटेशन उनके रख रहा हूँ, वो किताब में से, बॉर्न फॉर आर्कियोलॉजी। उनका अनुभव इस ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बहुत था, उन्हें अलग अलग अनुभव आए, ये आपके पूरी किताब में हमें दिखता है। और इस अनुभवों के वजह से उन्होंने अपने जीवन में थोड़ा समय देकर ये ज्योतिष शास्त्र पढ़ना शुरू किया। खासकर उन्होंने फल ज्योतिष के विषय में पढ़ना शुरू किया। भृगु संहिता, माफ कीजिएगा, भृगु संहिता पर उनका विशेष लगाव था और उन्होंने उसका अनुभव भी किया, ऐसा हमें उनके चरित्र पे से दिखता है। बट साथ ही साथ में उनका ऐसा कहना था कि हमें इन शास्त्रों के बारे में ध्यान देके पढ़ना चाहिए और इनका अपनी प्रज्ञा से, अपने क्रिटिकल थिंकिंग से इनके जो कोई तत्व है उनको उनकी छानना चाहिए और जो सच है उसे लाना चाहिए और जो गलत हो रहा है उसे वहां गलत कह के आगे बढ़ना चाहिए। सो यहाँ मैं पढ़ता हूँ कि उनकी कितनी मनशा थी कि आई वॉज ईगर टू वेरीफाई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, पर्टिकुलरिटी यहाँ पर्टिकुलरली होना चाहिए, so particularly regarding our future through a proper scientific inquiry, I have therefore taken a few steps in this direction। और बाद में उन्होंने अपने जो कोई डेक्कन कॉलेज के साथी थे और उनके साथ उन्होंने उनके हॉरोस्कोप जो थे वो देखना शुरू किए और उन्हें बाद में भृगु संहिता के हिसाब से पता चला कि जो आर्कियोलॉजी या फिर पुराण शास्त्र है या फिर एंशिएंट लिटरेचर के बारे में जहाँ देखा गया, तो वहां उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जिनके सैटर्न, जुपिटर, मार्स और मर्क्यूरी उच्च इसमें थे, तो उनका इससे संबंध लगा, ऐसा उन्होंने वहां प्रतिपादित किया। बट आगे जाके वो चरित्र में कहते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच while it may prove the truth of astrology and establish it as a fairly reliable discipline would raise other problems as well। तो उनका यहाँ भी क्रिटिकल थिंकिंग था कि हमें इन शास्त्रों के बारे में कैसा देखना चाहिए और किस हिसाब से देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं ज्योतिष ये शब्द की इटिमोलॉजी पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ज्योतिष द्युत्रु भाषणे दिक्तौच, ये जो धातु है इससे ये ज्योतिष शब्द बना है। इस धातु का अर्थ क्या है, तो इल्यूमिनेट और टू शाइन ऐसा है। तो ये आकाश में जो ग्रह गोल है ये हमेशा शाइन करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते। आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे ग्रह गोल है कि जो शाइन नहीं करते। तो इसका मतलब जो कुछ अवकाश में, अंतराल में घूम रहा है, चमक रहा है, वो सभी ग्रह गोल ज्योतिष शास्त्र के अंदर पढ़े जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ज्योति सूर्यादीनां ग्रहाणां गत्यादिकं प्रतोपाद्यतया अस्ति, या फिर ऐसी भी और एक व्याख्या की है कि ज्योतिषा सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, कि ज्योतिष जो है ये सूर्यादि जो ग्रह है उनका बोध करने वाला ये शास्त्र है। अब जिस वक्त हम सूर्यादि बोलते हैं तो इसमें शास्त्र कहता है कि 9 ग्रहों का ही हम शास्त्रीय पद्धति से विवेचन करेंगे। और इसमें आपको भी पता है कि राहु और केतु ये सचमुच में तो ग्रह नहीं है, बट शास्त्र ने उनको ग्रह का स्टेटस देके आगे सभी कैलकुलेशंस जो है इक्लिप्स के और इनके ये पूरे अपने किए हैं। तो जब हम ज्योतिष ये शब्द यूज करते हैं तब इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमी और एक एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोनॉमी में जो है वो प्योरली साइंटिफिक मेथड से हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रहों का कैसा चलन है, उनकी कक्षा कौन सी है, कौन से ऑर्बिट में से कैसे जाते हैं, ये सामान्यतया इसमें पढ़ा जाता है। और
एस्ट्रोलॉजी जो है उसके अंदर हमें ये दिखता है कि जो ग्रह है और उनके वजह से ह्यूमन के ऊपर जो कुछ परिणाम हो रहा है उसका शास्त्र के हिसाब से हमें देखा जाए तो क्या फल निकलेगा, कौन सा ग्रह अपने कहाँ आया, इस वजह से। सो ये संस्कृत और भारतीय भाषाओं का एक पिक्यूलर है कि ये दोनों चीजों के लिए इनके पास एक ही शब्द है। दूसरा शब्द अभी तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना हो तो फिर उसके आगे हम फल ज्योतिष लगा देते हैं, मतलब आपको समझ जाएगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज है, और एस्ट्रोनॉमी के लिए वो ज्योतिष ये शब्द लगा देते हैं। अब जहां तक अब ज्योतिष शास्त्र या फिर ये साइंस है क्या, या फिर इसको कैसे हम ये करें, तो हम ऐसा पहले इन शब्दों की भी एटिमोलॉजी अगर देख ले तो हमें और क्लियर कट आइडिया आएगा कि शास्त्र किसे कहते हैं और साइंस आज हम जो यूज कर रहे हैं उसे वो किसे कहते हैं। तो शास्त्र ये जो शब्द है वो शास्त्र अनुशिष्ट धातु से आया है, टू रूल टू एक्सप्लेन ऐसा करके। अब इसका मतलब क्या कि ऐसे कुछ जो कोई संकेत सूत्र है जो पर्टिकुलर चीज को रूल करते हैं। तो अब ज्योतिष शास्त्र है तो उसके अंदर ज्योतिष के हिसाब से जो कोई सूत्र है वो आएंगे। और साइंस का मतलब क्या, तो ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में से मैंने उठाया है कि नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट यू कैन प्रूव, फॉर एग्जाम्पल बाय एक्सपेरिमेंट्स। सो ये हमें ज्योतिष सॉरी साइंस, और जिसे हम सीधा सीधा शास्त्र बोल देते हैं साइंस का सिनोनियम करके, तो इसमें ये फर्क है। आगे हम बढ़ते हैं कि अब ये ज्योतिष शास्त्र का ये सब कैसे इस भारत देश में शुरुआत हुई। तो जब हम देखते हैं भारत के सभी प्राचीन साहित्यों के विषय में, तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि ऋग्वेद जो है, वैदिक संहिताएं है, ये भारत के उपलब्ध प्राचीन साहित्यों में से प्राचीनतम है। तो इनमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है इस ज्योतिष के बारे में, क्या सोच थी, क्या था। तो अब वैदिक संहिताओं में हम जब देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें हमें ज्योतिष विषय बहुत प्रिमिटिव ऐसी चर्चाएं मिलती है जो जिसका विकास हमें ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, इन ग्रंथों में उसका हमें आगे बहुत विकसित स्वरूप हमें मिलता है। तो अब ऋग्वेद में क्या क्या है, तो इसका हम जल्दी से आगे बढ़ के देख के आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में हमें ऐसा दिखता है कि जो कुछ दिन का कैलकुलेशन था, सभी कैलकुलेशंस थे वो व्यवहार निर्वहन के लिए हमें चाहिए थे कि अपना काम हो जाए उतना आगे बढ़ना। फिर हमें ऐसा दिखता है कि संहिता काल में सोलर ईयर भी जो था वो प्रचलित था, और सावन और चांद्र दिनों का भी वहाँ ग्रहण होता था। अभी आप पूछोगे कि सावन मतलब क्या, तो एक सावन मतलब आज के एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का जो काल है उसको सावन दिन ऐसा कहा जाता है। इस संज्ञा, ये जो सावन संज्ञा है, ये सवन, ये यज्ञ से संबंधित एक संज्ञा है, उससे हमें मिलती है। तो फिर और हम ऋग्वेद को अगर छाने तो हमें दशम मंडल के 55वें सूक्त के अंदर मिलता है कि ऐसा सूचन मिलता है, मंगल आदि जो बुध बृहस्पति ऐसे जो ग्रह है उनके और कुछ संकेत किया गया हमें दिखता है। फिर ऋग्वेद में ऐसे भी सूक्त है जिसके अंदर हमें ऐसा ध्वनित होता है कि 9 मास में, प्रति 20 मास के अंदर 9 मास में शुक्र ग्रह जो है वो प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर दिखलाई पड़ता है, और जिससे ऋषिगण स्नान पूजादि कर्म करके अपना समय ज्ञात कर लेते थे। सो हमें यहाँ
ये जो कुछ टाइम और नॉमी का जो कुछ सिद्धांत है, ये हमें दिखने यहाँ शुरुआत हो जाती है। भले ही इनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत प्रिमिटिव हो, बट हमें यहाँ बीज इनका मिलता है। बाद में हम आगे बढ़े तो ब्राह्मण ग्रंथों के तरफ आए, अरण्य जो ग्रंथ है उनके तरफ आए, तो हमें ऐसा मिलता है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंदर हमें 13 महीनों का काल में 13 महीनों के नाम मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंदर हमें उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ पता चलता है और कैसे उसका विभाग उन्होंने किया। तैत्तिरीय संहिता के अंदर हमें फिर से हम आए तो वो कहते हैं कि 6 महीनों का एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन है। तस्माद आदित्य क्षणमासो दक्षिणे नैति षडुत्तरेण, ऐसा तैत्तिरीय संहिता में आया है। और फिर जो आज हम पंचांग में जो काल गणना करते हैं दिनों की, एक महीने का, कि अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा का, पूर्णिमा से अमावस्या का, तो उसका भी हमें उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। और नक्षत्रों का भी उल्लेख, 27 नक्षत्र जो हमें आज पता है, मानते हैं हम, तो उसका भी उल्लेख हमें इन नक्षत्रों का तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। ये हो गया हमारा प्रारंभिक काल। फिर बाद में हमें ऐसा दिखता है कि वेदांग जो है, षड वेदांग, वेदों के रक्षण के लिए जो बने थे, उसके अंदर ज्योतिष एक शाखा हमें दिखती है। इस ज्योतिष को जो वेद पुरुष है उसके नेत्र ऐसा कहा गया है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो ये वेदांग ज्योतिष का फॉर्मेशन का टाइम अगर हम सोचे तो 500 BCE के आगे ज्यादा जाता नहीं है, ऐसा हमें वो वेदांग ज्योतिष के टेक्स्ट पढ़ के हमें पता चलता है। तो ये वेदांग ज्योतिष के अंदर ऋग्वेद ज्योतिष, यजुर्वेदांग ज्योतिष, अथर्व वेदांग ज्योतिष, ऐसे हमें ज्योतिष के ग्रंथ मिलते हैं। और ऋग्वेद का जो वेदांग है ज्योतिष का, उसके जो संकलन करता है ये लगध करके थे। उन्होंने 36 कारिका मतलब वर्सेस के अंदर ये ऋग्वेदांग ज्योतिष बद्ध किया है, संकलन किया है। अब हमें ऐसा पता चलता है कि पाश्चात्य विद्वानों के हिसाब से हमें ऐसा पता चलता है, वेस्टर्न स्कॉलर्स के हिसाब से, कि ये जो ग्रह और एस्ट्रोलॉजी है, प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ये हमें ग्रीक ट्रेडिशन से मिलती है। और इसका ये बताते हैं कि एक फुजी ध्वज नाम का चैप्टर है यवन जातक नाम के ग्रंथ में, तो उसके ऊपर से हमें लगता है कि आगे बढ़कर ये आया है वहां से, ग्रीक जो लोग थे उनके तरफ से। और हमें पता ही है कि एंशिएंट टाइम में गांधार का जो रीजन था वहाँ ग्रीक किंगडम्स बसे थे। फिर ये वेदांगों के आगे अब ज्योतिष परंपरा अलग होने लगी, क्योंकि वेदांगों के समय में हमें दिखता था कि यज्ञ करने के लिए एक शुभ मुहूर्त जो है, मुहूर्त है, और ये सब काल का जो गणन है, ये करने के लिए हमें वेदांग ज्योतिष की जरूरत थी। बाद में वराह मिहिर और आर्यभट्ट ने इसमें और काम किया और नए विचार और लाए। तो मैं बात कर रहा था वेदांग ज्योतिष के बारे में, और बाद में वराह मिहिर और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया गणित और इसके अंदर, और शुभाशुभ जो नक्षत्रों का प्रभाव है ये देखने के लिए। इस हिसाब से हम देखा जाए तो फल ज्योतिष जो है यहाँ से जनरली शुरू होता है। बट कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि जो ग्रहों का जो कुछ अपने ऊपर प्रभाव होता है, इसका जो कैलकुलेशन है या फिर निमित्त शास्त्र जिसे कहते हैं, अलग अलग चीजों से भविष्य का कथन करना, ये हमें दिखता है और भी प्राचीन साहित्य में हमें दिखता है। इन्होंने क्या किया कि जो ज्योतिष की दृष्टि से इन्होंने विवेचन करना शुरू किया। वराहमिहिर ने
पंच सिद्धांतिका नामक एक ग्रंथ लिखा, रचा 6th सेंचुरी सी के इसमें और उसके आसपास। और वहाँ हमें दिखता है कि उसके अंदर जो उन्होंने सिद्धांत रखे थे, पौलिश, रोमक, वाशिष्ठ, सौर और पितामह, ये जो 5 सिद्धांतों का उन्होंने उल्लेख किया था, ये इसके भी प्राचीन सिद्धांत हो गए, ऐसा हमें आगे पता चलता है। बाद में प्योर मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हमने देखा जाए तो आर्यभट्ट जो है फर्स्ट, जिनका समय साधारण देखा जाए तो 499 सीई के आसपास आता है, तो उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ, ये बहुत फेमस ग्रंथ लिखा। बाद में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने शुद्ध गणित के विकास के साथ साथ जो प्लानिटरी कैलकुलेशंस जो है प्लैनेट्स के, उनके भी नियमों का हमें प्रतिपादन किया हुआ दिखता है। और अब अगर हम ट्रेडिशनली इसे देखें तो हमें ऐसा पता चलता है कि जो ये ज्योतिष शास्त्र है उसका संहिता, गणित और होरा, इसके अंदर विभाग करके आगे ये और शाखा चलती रहती है। तो फलित ज्योतिष का सबसे आद्य ग्रंथ लिखने का भी श्रेय वराहमिहिर को जाता है। उन्होंने वाराही संहिता और बृहद जातक ग्रंथ ये लिखे, और ये संहिता और जातक ग्रंथों का प्रारंभ यहाँ से हमें दिखता है। अब ये मैं संहिता संहिता कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है ये हम जान ले तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो संहिता ये जो ग्रंथ है, इसके अंदर राष्ट्र और देश के विषयक जो शुभाशुभ फल है, इसको अवगत कराने की विधि हमें मिलती है, कि हम जान लेंगे कि ऐसा कुछ हुआ, उल्कापात हो रहा है कहीं, क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर से उन्होंने एक ये कैलकुलेशंस करके एक अंदाज लगाया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, प्रिडिक्शंस भी। बाद में अब हम यहाँ रुकते हैं और आगे जैनों के तरफ हम बढ़ते हैं। अब जैन ज्योतिष अगर समझना है तो इस चीज के लिए हमें पहले जैनों का जो वर्ल्ड व्यू है, कॉस्मोलॉजी है, इसे जानना अत्यावश्यक हो जाता है। यहाँ मैं पिन कर्सर घुमा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे पकड़ लीजिएगा, मतलब आपको बहुत ही आसानी होगी आगे। तो जब हम जैनों के हिसाब से इस लोक का वर्णन करते हैं, जैन ग्रंथों के हिसाब से लोक का वर्णन करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये पुरुष आकार ऐसा लोक है, और इसके बीच के अंदर उन्होंने 3 इसमें डिवाइड किया कि ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। तो जहां तक हमारे ज्योतिष का संदर्भ में हम बात करें, तो जितनी कुछ क्रियाएं होती है ये इस मध्यलोक के अंदर होती है। और ये मध्यलोक जो है, ये जैनों ने अर्थ को फ्लैट अर्थ माना है, और उसके बीच में एक सिमेट्रिकल सॉरी हेलो सर प्लीज कंटिन्यू, आई थिंक किसी का माइक ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा। तो हमें ऐसा पता चलता है कि जैनों के जो ग्रंथ है उसके अंदर उन्होंने अर्थ जो है ये उसको फ्लैट मान लिया है, और ये बीच में मध्यलोक में है, और ये अर्थ अनेक द्वीपों से बनी है, और ये अर्थ के बीच में ही एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसे हम मेरू पर्वत कहते हैं। अब जहां तक हमारा संबंध आता है, तो जैन कहते हैं कि असंख्यात द्वीप है इस भूमि पर, ये मध्यलोक के अंदर, बट उसके अंदर सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर ही आज मनुष्य की बस्ती है, ऐसी उनकी मान्यता है। और ये 2.5 द्वीप के बीचों बीच यहाँ ये मेरू पर्वत है, ये है जम्बू द्वीप पूरा, ये है इसका लवण समुद्र मतलब खारा समुद्र, और ये है घातकी खंड,
और ये है पुष्करार्ध द्वीप। और इसके यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, तो ये पर्वत है, इसको मनुष्योत्तर पर्वत कहते हैं। इसके आगे मनुष्यों की वस्ती नहीं है, चाहे यहाँ द्वीप हो, ऐसी उनकी मान्यता है। तो ये कॉस्मोलॉजी यहाँ है। और इस पर्वत के ऊपर ही, मतलब पृथ्वी से ऊपर कुछ योजनों पर, हमें ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ग्रह और नक्षत्र तारकादि है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हम जैन माइथोलॉजी और इसका सोचे, तो जैनों ने ये ग्रह, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारका, ये जो 5 क्लासेस है, उसको उन्होंने देवता कहा है। और हम आज जो देख रहे हैं, जिस सूर्य को देख रहे हैं, जो गोल पिंड हम देख रहे हैं, जो चंद्र का गोल पिंड हम देख रहे हैं, जैनों के मत से वो वो जो देवता है, ये उनके भवन है, उनका घर है, और उसके अंदर वो देवता रहती है। ऐसा अलग ही विचार उन्होंने हमें दिखता है कि किया है। तब भी ये सब ग्रह जो है, ये मेरू पर्वत के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। अब हम अगर जैनों के साहित्य के तरफ आए, पर्टिकुलरली ज्योतिष शास्त्र रिलेटेड जो साहित्य है, उसकी स्कॉलर्स ने 4 हिस्सों में टाइम पीरियड के हिसाब से बांट दिया है। तो पहला पीरियड है 300 BCE से 600 CE, और मिडल एज के और 2 भाग कर दिए कि फर्स्ट हाफ जो है वो 601 CE टू 1000 CE, फिर लेटर हाफ जो है 1001 CE टू 17,080 CE। मॉडर्न जो पीरियड है वो है अभी तक चला आ रहा था, वो 1970 तक, 1701 से लेके 1970 तक। तो हमें ये पता चलता है कि कंटिन्यूअस जैनों का साहित्य जो है इस विषय में निर्माण होता गया, और बहुत बड़ा साहित्य इस में हमें प्राचीन हस्तलिखितों में उपलब्ध होता है। अब आप पूछोगे कि भाई जैन ज्योतिष, ये जो है, ये शास्त्र, ये अलग कैसे है बाकी जो ज्योतिष की परंपरा है वहां से, उससे। तो हमें ये पता चलता है कि जो ग्रह है, ऐसी कल्पना ये करते हैं कि जो ग्रह है वो, जो ये मेरू पर्वत है, इसके आजू बाजू में घूमते हैं, गोल 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 कक्षा में। दूसरा, ये बहुत ही गजब उन्होंने निकाला है कि 2 सूर्य और 2 चंद्र इस लोक आकाश में है। ये भारत के अंदर इसके ऊपर बाद में आर्यभट्ट और उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर उसकी टीका की है, और ये मत को करेक्ट करने का उन्होंने ये किया। बट तब भी जैनों के इसमें अगर आप देखें, तो ये 2 सूर्य और 2 चंद्र, आज भी बहुत सारे जो रिलीजियस जैन है, बहुत ही स्टॉन्च फॉलोवर जो है, वो इसे मानते हैं कि हाँ है। जैसा वेदांग ज्योतिष में हमें दिखता है कि 5 सालों का एक युग की कल्पना उन्होंने की है, वैसा ही जैनों ने 5 साल का एक युग माना है। और वो शुरुआत होती है इसकी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से। फिर हमें ऐसा दिखता है कि जैनों ने कैलकुलेट भी किया है, बहुत सारा कैलकुलेशन भी किया है, सन और मून के जो रोटेशन पाथ है उसको लेकर, जो ऑर्बिट में वो घूमते हैं उसके हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि जो लूनर ईयर है वो 327 दिन और 51/67 दिनों मुहूर्त का ये होता है। और फिर सवन जो दिन है, वो जो है 360 दिन का एक साल में होता है। और एक सोलर ईयर जो है वो 366 दिन, मतलब 366 डेज का ये है। और आज भी हम 365 जो मानते हैं, इसके पास ही इनका कैलकुलेशन सोलर के हिसाब से ये जा रहा है, हमें दिखता है। बाद में जैसा मैंने बताया कि ये
ये जम्बू द्वीप के बीच में ये बड़ा सा ऐसा मेरू पर्वत इन्होंने इमेजिन किया है, और इसके आजू बाजू में बहुत सारे ग्रह जो है ये घूमते हैं, दो सूरज और दो चंद्र ऐसा करके, चांद, और बाकी के भी जो ग्रह है वो भी दो दो ही उन्होंने माने हुए हैं। तो इनकी ऊंचाई कितनी है, ये समतल, अगर आप कहीं समतल भू प्रदेश पे अगर रहे तो वहां से इस इन ग्रहों की ऊंचाई कितनी, तो वो कहते हैं कि 690 योजन दूर, एक योजन साधारणतः 15 किलोमीटर जितना होगा, तो एक योजन, सॉरी 690 योजन इस पृथ्वी से ऊपर स्टार्स है, 10 योजन ऊपर सन है, मतलब 10 योजन मतलब ये 700 800 योजन ऊपर सूर्य है, और 880 योजन ऊपर मून है। देखिए उन्होंने क्या किया है कि जो सूरज है उसको हाइट में नीचे लिया है, और जो चांद है उसको और ऊपर आकाश में भेजा है। जो आज के जो हम एस्ट्रोनॉमी जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें ये सिद्धांत ये हुए दिखते हैं, डिस्कार्ड किए हुए दिखते हैं। तो आगे अगर देखे तो ये जो मून है 180, तो फिर एक 884 योजन ऊपर हमें दिखता है कि कॉन्स्टिलेशंस है, उसके और 4 योजन ऊपर कॉन्स्टिलेशंस के मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट है, बुध ग्रह है, फिर 3 योजन वीनस है, और ये सब। अब आप बोलोगे कि अगर आप सभी को जैन धर्म का अगर थोड़ा पता होगा, तो दीज आर बेसिकली इथिकल रिलीजन्स, और इनका कहना यह है कि आप कर्म करो, आपके कर्म की वजह से आपको फल मिलेगा। ये जो देवता है या फिर कुछ है, इनका अगर पूजा करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तब भी हमें ऐसा दिखता है, मतलब अगर महावीर की वाणी में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कहना यह है कि अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय, अप्पा मित्तम च दुपट्ठ्य सुपट्ठ्य। मतलब हम ही खुद के दुश्मन और दोस्त हो सकते हैं, और हम ही अपने भविष्य को बना सकते हैं या फिर उसको बिगाड़ सकते हैं, उसमें दूसरा कोई आने वाला नहीं। तो फिर जब हम ये फल ज्योतिष के बारे में हम बोलते हैं, तो फिर जैनों का क्या विचार था इसके पीछे, ये कैसे आया, ये क्वेश्चन हमें आता है। तो इस विषय में अगर हम कहे तो जैन कहते हैं कि जो ग्रह है आकाश में यहाँ वहां का, तो हमें ये पता चलता है कि ये सूचन करते हैं अपने जो कुछ भूतपूर्व के जो कर्म होते हैं, वो अच्छे हो या बुरे हो, ये आगे आएंगे, उनका फल हमें ऐसा मिलेगा। तो ये जो ग्रह के जो पोजीशंस है उनके ऊपर से वो कहते हैं कि हमें अंदाज मिलता है इसका कि क्या आगे हो सकता है। दे आर नॉट गोइंग टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ फ्यूचर, और वो क्या बोलते हैं कि प्रमाण हम पे प्रत्यक्ष ये देते नहीं है। बट हम आगे जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं, ये इनसे सूचन मिलता है। जैसे कि हम देखें कि अगर निमित्त शास्त्र, मतलब जिसके ऊपर से भविष्य कथन किया जाता है, हाथों के तलवे देखने से, रेखाएं देखने से, या फिर चेहरे के ऊपर के कुछ लक्षण देखने से, ऐसा वो कहते हैं कि ये ग्रह भी जो है ये वैसा ही काम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रश्न शास्त्र भी इन्होंने डेवलप कर दिया इसके ऊपर से, फलित ज्योतिष के अंदर इन्होंने ये भी डाल दिया, प्रश्न शास्त्र भी डाल दिया। अब ये प्रश्न शास्त्र मतलब क्या, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, और उस क्वेश्चन के जो कोई ये है शब्द आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर से ये आपका भविष्य कथन करने का उन्होंने शास्त्र आगे चलाया है। सो ये जो हम जब क्वेश्चन करते हैं इसको, तो हमें ऐसा दिखता है कि जो बिहेवियरल एनालिसिस है आज का मॉडर्न साइंस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर जो पढ़ाया जाता है, इसके ये नजदीक जाता है। क्योंकि आप कौन सी तो भी मनस्थिति में हो,
तो आप पर्टिकुलरली जो शब्द है उसका भी वैसे ही अ, आप वो चूज करते हो आपके विचार व्यक्त करने के लिए, और उसके ऊपर से आपका अभी दिमाग में क्या चल रहा है वैसा और क्या कर सकते हो, वैसे उन्होंने वो प्रिडिक्शंस आगे दिए हैं। बाद में हम अगर अर्लीस्ट जैन स्क्रिप्चर्स के बारे में अगर देखे जाए, अर्लीस्ट लिटरेचर के अंदर कि भाई ये आया तो सबसे पहले जैनों में कहाँ कहाँ दिखता है, तो हमें ऐसा पता चलता है कि जो ज्योतिष शास्त्र है, चाहे वो सेक्युलर गणितीय विज्ञान हो, आज का प्योर मैथमेटिक्स जिसके अंदर बीज गणित, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब आता है, वो चाहे ग्रहों का, नक्षत्रों का जो कैलकुलेशन है फॉर द टाइम कीपिंग, या फिर पंचांग तैयार करने के लिए, कैलेंडर तैयार करने के लिए, तो वो उसके लिए हमें उनका कंट्रीब्यूशन दिखता है। ये जो निमित्त शास्त्र है जो आज बहुत ही प्रचलित है और जिसके वजह से समाज की बहुत हानि भी होती है, और कहीं कहीं क्या कहे, हानि भी होती है, और कहीं कहीं उसका फायदा भी हमें करना पड़ता है साइकोलॉजिकल, अगर हम इसके हिसाब से अगर देखें तो हमें सबसे पहले, अगर हम ये सब ग्रहों का देखना जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रश्न व्याकरण जो है एक ग्रंथ है जैनों के आगम ग्रंथों में, उसके अंदर हमें नक्षत्रों को जो है उसमें उन्होंने और डिवाइड कर दिया है कैलकुलेशंस के लिए, टू बी मोर एक्यूरेट होने के लिए। और फिर बाद में यही जो ग्रंथ है इसके अंदर नवग्रह, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति, मंगल आदि जो ग्रह है, नवग्रह, उनके बारे में भी चर्चा की हुई दिखती है कि उनका जो ऑर्बिटल पाथ है ये कैसा है, फिर ये कितने दिनों में मतलब एक दिन में कितना कवर करते हैं डिस्टेंस, ये सब उन्होंने दिया है। बाद में एक समवायांग सूत्र करके आता है, तो उसके अंदर भी हमें जो लूनार इक्लिप्स है उसके बारे में, वो कैसा होता है, तो उसकी रीजन उन्होंने देना शुरू किया। तो वो कहते हैं कि जो लूनार इक्लिप्स है ये राहु, जो हिंदू या फिर वैदिक इसमें भी हमें दिखता है कि राहु जो काल्पनिक ग्रह है उसके वजह से लूनार इक्लिप्स होता है। या तो उन्होंने क्या किया कि वो कहा कि राहु के जो है उन्होंने दो भेद कर दिए, मतलब दो राहु की कल्पनाएं की है उन्होंने, एक नहीं दो। तो एक जो राहु है जो हम आज कलाएं देखते हैं, प्रतिपदा से अमावस तक, पूर्णिमा से फिर से यहाँ, तो वो जो कलाओं में चांद के ऊपर जो परछाई आती है, वो परछाई जो आती है वो नित्य राहु के वजह से आती है। और जो इक्लिप्स होता है, जो चंद्र ग्रहण होता है, वो परवर राहु के वजह से आती है। ऐसी उन्होंने वो कल्पना की, और वो उसका एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। बाद में हम देखते हैं कि स्थानांग सूत्र जो है उसके अंदर हमें 88 प्लैनेट्स की लिस्ट हमें मिलती है जैनों के तरफ से, और यही जो लिस्ट है 88 प्लैनेट्स की, ये हमें समवायांग सूत्र में भी मिलती है। तो ये 88 प्लैनेट्स में आपको बताता हूँ, ये ठाणांग सूत्र का मैंने वो निकाल के रखा है यहाँ पे। इसमें ये नाम दिए हैं कि इंगा लगा, विया लगा, लोहिताक्ष, फिर सोम है, साहिया है, सोम मतलब चंद्र, धूमकेतु मतलब केतु जो अ, ग्रह है जिसकी कल्पना की गई है वो, फिर बृहस्पति है। ये सब इन्होंने ऐसे 88 ग्रहों के बारे में जानकारी आगे देना चाहा। बट अब जहाँ ये दो राहु मतलब दो सूरज और दो चंद्र मान रहे हैं, वहीं ये 88 ग्रह का जो पेयर है वो भी उन्होंने डबल कर दिया, मतलब 88 प्लस 88 वही ग्रह, ऐसा। फिर ये आकाश में ही घूमते हैं और उनकी भी एक प्लानिटरी मोशन है, ऑर्बिटल मोशन जो है वो हमें दिखता है।
कैलकुलेट किया हुआ। मैं कैलकुलेशन में इसमें इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ये बहुत ही पहले ही जो ये बहुत ही कठिन ऐसा है, बट जितना मुझे से होगा उतना मैं आपको सिंपल करके समझाऊंगा। फिर हमें मिलते हैं सूर्य पन्नति और चंद्र पन्नति करके दो ग्रंथ है। तो इसके अंदर हमें मिलता है कि फिर से जो 5 साल का एक युग माना है, फिर युगारंभ जो हुआ तो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से होगा। फिर ये चंद्र पन्नति करके प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति करके जो ग्रंथ है जिसको प्राकृत में चंद्र पन्नति कहा गया, तो उसके अंदर सूर्य का गमन मार्ग कैलकुलेशन किया है कि सूर्य जो कैसा जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होके इसके अंदर उस कितना वक्त वो रहता है कितने इसमें उसका भ्रमण होता है, ये हमें वहाँ कैलकुलेट किया हुआ दिखता है। और हमें एक चीज वहाँ मिलती है कि आज हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है ये चंद्र के प्रकाश का कारण है, बट ये चंद्र पन्नति के इसमें ही जैनों की जो थिंकिंग है इसका हमें दिखता है कि वो मानते हैं कि चंद्र जो है ये स्वयं प्रकाशी है। और फिर आगे फिर से पृथ्वी तल से सूर्य और आदि इनकी ग्रहों की ऊंचाई दी है। एक यहाँ उन्होंने कैलकुलेशन और बहुत अच्छा दिया है जो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि छाया साधन, मतलब अपनी जमीन सूर्य जब रहता है तब जमीन पे छाया जो अपनी गिरती है तो उसको शैडो, तो उसको कैलकुलेट करके कैसे हम कितना दिन अभी व्यतीत हो गया है और कितना दिन व्यतीत होने वाला है, कितना बचा है व्यतीत होना, तो इसके बारे में आगे चर्चा उन्होंने की है। तो ऐसा एक आता है कि क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर अर्ध पुरुष प्रमाण छाया हो, मतलब अगर आप धूप में खड़े हो और आप आपकी शैडो को देखें तो आपकी हाइट से आधी शैडो अगर आपको दिखे तो कितना दिन व्यतीत हुआ और कितना बचा है। तो उत्तर इसके ऊपर हमें मिलता है कि एक तृतीयांश दिन व्यतीत हो गया। तो फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि दोपहर के पहले अगर अर्ध पुरुष प्रमाण छाया हो, मतलब मेरी आधी छाया अगर जमीन पर गिरी हो तो ये दिन का कितना भाग बचा, तो वो कहेंगे कि दिन का फिर से तृतीय भाग बच गया और दो तिहाई भाग तृतीय भाग व्यतीत हो गया और दो तिहाई भाग जो है दिन का वो अभी शेष है। ऐसे ही सिर्फ हमारे इंसान के नहीं, तो जो कील रहती है नेल जो रहता है लोखंड का, उसके ऊपर से भी उन्होंने कैलकुलेट करना चाहा। और ऐसी अलग अलग 25 वस्तुएं हैं जिसके ऊपर से उन्होंने ये दिन का कैलकुलेशन करने के लिए कि भाई कितना बचा है कितना शेष है, तो ये टाइम कैलकुलेशन के लिए वो उन्होंने यूज किया हुआ हमें उल्लेख मिलता है। बाद में हम आते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कालकाचार्य करके बहुत बड़े एक जैन मंक होकर गए, वो भी ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड पंडित थे और इन्होंने ही गर्दभिल्ल के ऊपर जो शक राजे थे उनको ले आक्रमण करवाया था और अपनी बहन को बचाया था, ऐसा कहा जाता है। इनके बारे में कथा है। तो इनका भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रभाव रहा, उनका कार्य भी रहा। जो अलग अलग हम ग्रंथ देखते हैं, आवश्यक चूर्णी और ये सब निशित चूर्णी, ये जो ग्रंथ दिखते हैं तो उसके अंदर इनके विचार हमें मिलते हैं। और इनकी जो संहिता थी इसका उल्लेख वराह मिहिर ने अपने बृहद जातक नाम का जो ग्रंथ है उसके अंदर कालक संहिता करके इनका उल्लेख किया है, इनके ग्रंथ का। तो आपको इस पे पता चलेगा कि कितना प्रभाव वहाँ इन जैनाचार्यों ने भी रखा था। बाद में उमा स्वाति जी होके गए, तो उनका ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थाधिगम सूत्र। उसके अंदर 4th चैप्टर के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जैनों के इस ग्रहों के परिभ्रमण और इसके विचार जो है वो उन्होंने वहां नोट किए हैं। फिर आगे
हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मिडल पीरियड है इसके अंदर गणित और फलित का भी, मतलब भविष्य बताना और प्योर मैथमेटिक्स, ये सभी ग्रंथ दोनों ज्योतिष के अंगों के अंदर बहुत बड़ा बहुत बड़ी ग्रंथ संपदा निर्माण हुई है। उसके अंदर अगर नाम लेना चाहे तो ऋषिपुत्र है, महावीराचार्य, ये बहुत बड़े गणिती हो गए, चंद्रसेन है, श्रीधर। एक्चुअली इनको जैन माने या न माने, ये जरा क्वेश्चन मुझे भी पड़ता है, क्योंकि ये जब इन्होंने ग्रंथ लिखा शायद तक, तो वहाँ वो हिंदू धर्म में थे और बाद में वो जैनिज्म की तरफ कन्वर्ट हुए, ऐसा हमें मिलता है, उल्लेख मिलता है। फिर भद्रबाहु करके जो वराहमिहिर के, जैनों में कहा जाता है कि वो वराहमिहिर के भाई थे, तो उनका अर्हत चूड़ामणि सार करके एक ग्रंथ मिलता है, जिसके अंदर फिर से यही प्रश्न शास्त्र के ऊपर से उन्होंने प्रिडिक्शन देना शुरू किया है। फिर आते हैं महावीराचार्य के गणित सार में, ये प्योरली मैथमेटिकल वर्क है। इसके अंदर बीज गणित आएगा, बीज गणित के साथ आपको ये भी मिलेगा कि जो ज्योमेट्री के कुछ थ्योरम्स है ये भी यहाँ आते हैं, कि जैसे समत्रिभुज है, समत्रिभुज है, विषम त्रिभुज है, समकोण है, या फिर चतुर्भुज है। इनका जो क्षेत्रफल है और घनफल है, ये निकालने के इसके अंदर उन्होंने ये दिया है, सूत्रबद्ध किया है सब फॉर्मूलाज। और इनके ग्रंथ का अगर मंगलाचरण हम पढ़े तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनका गणित बहुत ही ज्यादा प्यार था। तो वो कहते हैं कि लौकिके वैदिके वापि तथा सामायिके यहाँ व्यापार तत्र सर्वत्र संख्यानम युज्यते, कि लौकिक हो, वैदिक हो, या फिर अन्य कोई धर्म कृत्य हो, आपको व्यापार करना है या कुछ भी करना है, सभी तरफ आपको संख्या ही काम में आएगी, गणित शास्त्र ही काम में आने वाला है, इसलिए आप गणित पहले सीखो। शायद से इसी वजह से ऐसी परंपरा हमारे यहाँ चली, इसलिए गणित के यहाँ हम आज भी बहुत ही फोकस करते हैं। ये इनका जो समय है, ये अमोघ वर्ष नृपतुंग जो होके गए राजा, राष्ट्रकूटों के, तो उनके समय में ये होके गए अराउंड 850 सी के तरफ। इन्होंने और एक ग्रंथ लिखा कि ज्योतिष सार पटल करके एक ग्रंथ लिखा, और उनके उस ग्रंथ के भी अंदर हमें ऐसा दिखता है कि उन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में, बीज गणित हो, भूमिति हो, इसके बारे में बताया। लेटर हाफ ऑफ मिडल पीरियड में हम आते हैं, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में ये जो प्रिडिक्शन देना है ना, लोगों के हाथ देख के, ये चेहरा देख के, इसके ऊपर बहुत ग्रंथ संपदा हमें मिलती है। दुर्गदेव है, उनका समय अराउंड 1032 सी ऐसा आता है। तो उन्होंने शौर सेनी प्राकृत के अंदर अपने ये विशिष्ट समुच्चय का रचना की। तो इस रिष्ट समुच्चय के अंदर भी फिर से वही आ गया कि मुहूर्त है, अलग अलग लक्षण है कि क्या होगा क्या नहीं और उनका फल क्या आएगा। ये फिर मल्ली शैन करके होके गए, तो उन्होंने, ये धारवाड़ के थे, उनका समय भी 1443 सी के आसपास आता है। तो इन्होंने आयसत भाव नाम का ग्रंथ लिखा। फिर अरहत दास करके आ गए, ये 300 सी में होके गए। ये कन्नड़ भाषा के विद्वान थे और उन्होंने कन्नड़ में ही अट्ठमत नाम का ग्रंथ लिखा। और ये अट्ठमत का बाद में भास्कर जो थे, आंध्र कवि थे, तो उन्होंने इसका तेलुगु में ट्रांसलेट किया है। इस अट्ठमत के अंदर हमें जो बादल है, आज हम अगर बादलों का भी शास्त्र है तो उसके अंदर निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, ऐसे सब ग्रह हमें पता चलते हैं। तो
इनके ग्रंथ के अंदर भी ऐसे मेघों का, बादलों का नाम आता है। अलग अलग प्रकार के बादलों का इन्होंने विवेचन किया। इंद्रधनुष का भी उन्होंने लक्षण बताया कि क्या कब क्या आएगा, और ऐसे ये परंपरा फिर और आगे चली। अब मॉडर्न पीरियड में आते हैं तो मेघ विजय गणी करके होके गए, तो उन्होंने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे। मेघ महोदय लिखा, वर्ष प्रबोध लिखा, उदय दीपिका ग्रंथ की रचना की, रमल शास्त्र और हस्त जीवन, ये इनके मुख्य ग्रंथों में आता है। और ये जो हस्त जीवन है ना, इसके अंदर अगर जिनको पढ़ना हो तो उनको पता चलेगा कि जो हाथ जो देखते हैं हस्तरेखाओं से प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, ये उन्होंने डिटेल में, बहुत डिटेल में बताया है। और किसी को भी अगर ध्यान से पढ़े तो समझ में आ जाए, ऐसा ये ग्रंथ है। बाद में उभय कुशल करके एक मुनि होके गए, उन्होंने चमत्कार चिंतामणि तवा ऐसा एक ग्रंथ लिखा। जहां तक हम पूरे भारत के अंदर अगर देखा जाए ज्योतिष की बात करते हैं, तो अराउंड 1 लाख मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास अभी एस्टिमेटेड है, जिनका अलग अलग इसमें ग्रंथालयों में हमें दिखता है। जैसे राजस्थान के है, साउथ इंडिया की सरस्वती महल है, और मध्य प्रदेश की कुछ लाइब्रेरीज है उनमें। और इन सब में अराउंड 500 ज्योतिष के अलग अलग विषयों पे काम लिखे हुए 500 जैन मुनियों के ग्रंथ हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा था। अब आप बोलोगे कि फिर से कि हमें ये देखने की क्या जरूरत है। जैनोलॉजी का ही प्रिंसिपल ये है कि हम जैन धर्म के हर एक अंग को, उन्होंने जैनों ने जितना साहित्य निर्माण किया उसको पढ़े या फिर उसके ऊपर संशोधन करें, और उसके ऊपर संशोधन ऐसा करें कि क्रिटिकल हो और सामने लाए। तो अभी ये जरा मैं बड़ा करता हूँ। इसके अंदर हमें अगर आपसे जूम करके अगर आप देखें, तो ये साइड में वर्तमान में हम जो महीनों के नाम देते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, तो उनका प्राचीन जैन ग्रंथों में कैसा नाम था कि वसंत, कुसुम संभव, निदाघ, दान विरोधी, ऐसे वो नाम हमें 12 नाम अलग मिलते हैं। और जैन ज्योतिष की जो गणना है, जो काल के हिसाब से हम करते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ 5 जो ऋतु है, वर्षा, शरद, शिशिर और वसंत, वसंत और ग्रीष्म, ये 5 ही ऋतु को उन्होंने माना है, एग्जिस्ट करते हैं। अब जहाँ हम ग्रहों की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि ये देवता भी है, और फल ज्योतिष का फिर विकास भी होता गया, प्रिडिक्शन हुए, तो समाज के अंदर कुछ अंधश्रद्धाएं भी वैसे फैलने लगी, ऐसा हमें दिखता है। और फिर ये ग्रह हमें परेशान करेंगे, इन ग्रहों के वजह से मेरा काम नहीं हो रहा, ऐसा सब लोग बता रहे, अनुभव करते हैं या फिर इनको बताया जाता है। तो जैनों ने क्या किया कि उन्होंने इनकी शांति के लिए और अलग लिटरेचर तैयार करना शुरू किया, जो स्तोत्र वाङ्मय है, ये हमें दिखता है। तो ये एक ग्रह शांति के लिए बहुत फेमस ऐसा श्लोक है, ये आगे भी चलता है। इसका मैं पहला ही ये किया है कि जगत गुरुम नमस्कृत्यम श्रुत्वा सद्गुरु भाषितम ग्रह शांति प्रवचयामि लोकानाम सुख हेतवे। लोगों के सुख के लिए मैं ग्रह शांति का अ, ग्रह शांति के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से हमें ऐसा दिखता है कि हाँ, ये अब कुछ अलग अलग फिलोसॉफी से दूर होना लग चाहिए, चले गए। फिर हम इन ग्रहों के बारे में इतना बोले, तो फिर इनका डिपिक्शन हम कैसे आता है, ये देवता है तो हमें ये देखिए, ये है सिद्ध चक्र यंत्र करके है तंत्र के अंदर, जैन तंत्र के अंदर हमें ये दिखता है। तो यहाँ हम अगर ध्यान दे, ये कर्सर अगर आपको दिख रहा हो, तो यहाँ सूर्य हमें डिपिक्शन दिखाई दे रहा है, जिसके हाथों के अंदर 2 कमल के फूल है। बाद में यहाँ चंद्र है, जिसके हाथ में भी एक फूल है। और
बाकी के 9 ग्रह राहु केतु लेफ्ट साइड के अंदर आप देख सकते हो, और बाकी के 3 ग्रह ये राइट साइड में आपको दिखते हैं। फिर तो हाँ, अभी यहाँ हम देखेंगे डिपिक्शन है। तो ये मंदिरों पे भी हमें मिलता है। साधारण से 18 सेंचुरी सॉरी 8 सेंचुरी सी, अगर आप खजुराहो के मंदिर देखें तो वहीं भी हमें मिलता है। ये फिर से और एक सिद्ध चक्र यंत्र है। यहाँ ये नीचे के साइड पे सभी ग्रहों की पूजा हमें की जाती दिखती है। बाद में हमें मूर्तियों के जो तीर्थंकरों की मूर्तियां है, इसके जो परिकर है, तो यहाँ इस साइड पे ये देखिए, ये 5 और ये 4 ऐसे ये ग्रह हमें दिखते हैं। तो ये ग्रहों का बाद में इतना प्रभाव पड़ गया कि उनके कुछ भी मंदिर की प्रतिष्ठा भी करनी हो तो पहले उन ग्रहों को निमित्त शास्त्र के हिसाब से इन ग्रहों को जैनों के इस बारे में ये देखकर अब इनका कैसा इन पे प्रभाव गिरा कि आ, ये अलग ही नहीं हो पाया, सब मिक्स हो गया है बाद में, ऐसा हमें यहाँ दिखने लगता है। और यही मैं अब मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए पेशेंटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवेश जी, आपने इतना डिटेल में हमें ये प्रेजेंटेशन पूरा आपने दिया। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं सर जो काफी हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने पूछे हैं, तो वन बाय वन मैं आपसे पूछती हूँ, सो इट विल बी बेटर। मैं आपको एक एक सवाल पूछती हूँ, आप उसके जवाब हमें प्लीज दें। जी, मैं जी यहाँ कैमरा शुरू कर देता हूँ मेरा। जी धन्यवाद। आप स्क्रीन शेयरिंग चाहें तो बंद कर सकते हैं, वी कैन हैव अ फुल व्यू इन हाँ, दैट केस। जी सर। मैं यहाँ से यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, हो गया अब आगे। हो गया, इट्स फाइन, इट्स वर्किंग। सर पहला क्वेश्चन है कि 10वीं सदी तक ऐसी मान्यता थी कि सिर्फ 8 ग्रह हैं। उसके बाद फिर नवाग्रह क्यों जोड़ा गया, या फिर कैसे ये डिसाइड किया गया कि नवाग्रह भी है? देखिए, इसकी चर्चा आगे बहुत शास्त्रों में ही आर्यभट्टीय अगर आप पढ़े या फिर सूर्य सिद्धांत पढ़े तो इसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि जहाँ रिकर जो हो रहा था कहीं कैलकुलेशन में, जी उस रिकर को ये करने के लिए उन्होंने ये किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य ग्रह को अगर इक्लिप्स लाना है तो जो चंद्र को काम कर रहा है वो नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है, जो राहु की इन्होंने पोजीशन डिसाइड की तो वो अलग अ, आज आ गई है, इसलिए वो रिकर होगा, वो कैलकुलेशन में नहीं बैठता था, तो इसलिए उन्होंने ये लाया है, जहां तक मेरी समझ है और मेरा पढ़ना है। ओके सर। जैसे माना जाता है कि जैन दर्शन जो है, जैन फिलॉसफी है, उसमें कर्म को प्राथमिकता दी जाती है। फिर हम ज्योतिष शास्त्र को जैन धर्म के या जैन दर्शन की संदर्भ में कैसे देखेंगे, या कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? हाँ, तो अब ये मतलब मैंने इस टॉपिक को छुआ और फिर शायद से मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर फिर से मैं करता हूँ कि अभी देखिए कि निमित्त शास्त्र जो है, आप देखिए कि जो 14 स्वप्न पड़े या फिर ये कुछ भगवान महावीर की माता को, त्रिशला को, तो उसके ऊपर से उन्होंने सूचन जो था तो वो मिला कि आपके गर्भ से तीर्थंकर होने वाले हैं या फिर चक्रवर्ती होने वाले। तो इस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर भी इन ग्रहों का प्रभाव होता है, ऐसा जैन बात के इसमें हमें पता देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअली जस्टिफाई करने के लिए ये लोग बहुत अलग अलग लेंथ पे जाते हैं कि ये बोलेंगे कि आपके जो कर्म है, पूर्वकृत कर्म है,
अगर आप भद्रबाहु संहिता देखें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये पूर्वकृत जो कर्म है, पिछले जन्म में हमने कहाँ किए थे, क्या किए थे, तो उसके वजह से उसका ये सूचन हमें ये ग्रह जो है ये देते हैं, ऐसा उन्होंने किया है। बाकी जो कर्म का सिद्धांत है वो हमें कहीं अलग ऐसा करके नहीं मिलता। जो कुछ हो रहा है वो कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है, बट उसका सूचन ये देते हैं। वो ग्रह आपके जीवन में आके कुछ करने वाले नहीं है, बट उनकी जो पोजीशन है, प्लैनेटरी पोजीशन, उसके ऊपर से आप कुछ अंदाज लगाते हो। जैसे ये हवामान का जो विभाग है वो जैसे प्रिडिक्ट करते हैं, वैसा उन्होंने वो सोचा। जी सर, जैसे कि कुछ जो पुराने हमारे जो ऋषि हैं या जैन जैन धर्म में जो मंक्स हैं, वो इस ज्योतिष शास्त्र की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहां पर इन्हीं जैन मंक्स ने या फिर जैन ऋषियों ने ये जो ज्योतिष शास्त्र को रिजेक्ट किया है या फिर जो उनकी मान्यताएं हैं उसको खंडित किया है किसी तरह से? जहां तक आगम के बारे में, जितनी जो 2 सूर्य है, 2 चंद्र है, ऐसा उन्होंने कहा, 88 प्लैनेट्स है, तो यहाँ तो कोई किसी ने शास्त्र के विरुद्ध बोला नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है ना कि ये तो प्रमाण ही है, हमारी श्रद्धा है, इस वजह से जी इसको हम कैसे क्या ये करें। हालांकि हमें खुद आगमों में ऐसा मिलता है, कुछ उत्तराध्यायन अगर आप सूत्र पढ़े तो उसके अंदर हमें केशी जो है, पार्श्व परंपरा के गंधर थे, और गौतम स्वामी जो महावीर स्वामी के शिष्य थे, उनके अंदर चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है, तब कहते हैं कि इतना भेद क्यों है, तो गौतम स्वामी बोलते हैं कि पन्ना समीक्षे धम्मम, कि जो प्रज्ञा है, अवर इंटेलेक्ट टू क्रिटिकल एनालाइज एनीथिंग, ये जी इंटेलेक्ट का जो एक ये है, तो इससे आप धर्म की समीक्षा करो, जो आप जो फॉलो कर रहे हो। और धर्म मतलब ये कि आचार है, स्क्रिप्चर्स है, या फिर कोई भी चीज है, उसको अलग अलग धर्मों से, मतलब अलग अलग क्वालिटी से आप जान लो, और फिर उसके ऊपर जो तर्क है, उसके आपके जो तत्व है, प्रिंसिपल्स है, उसकी तर्क से समीक्षा करते जाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। बट बाद में अति श्रद्धा का एक बहुत ही, सभी सभी ही दर्शनों में हमें दिखता है कि जी ये अति श्रद्धा होने के कारण बिल्कुल। दिखता है। क्या जैन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवता और नरकी भी ग्रहों की स्थिति से प्रभावित होते हैं? नहीं, ये इसका अभी तक कुछ ऐसा उल्लेख मैंने तो भी अभी तक नहीं था जी कि नारकी को के ऊपर किसी का प्रभाव हो, जी क्योंकि उसका जो इन्फ्लुएंस ये है वो नीचे ही है। जैसे जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, उसका जो जो हमारे ग्रह हैं जैसे राहु केतु है, उनको हम नर या मादा के रूप में देखते हैं। तो क्या जैन एस्ट्रोलॉजी में भी या जैन ज्योतिष शास्त्र में भी हम लोग ग्रहों को नर मादा या फिर मेल फीमेल का असाइन करते हैं? नहीं, जी नहीं। जी उनका जो डिपिक्शन आता है वो पुरुष के हिसाब से ही आता है, और वो देवता मतलब अभी ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम चंद्र कह रहे हैं या फिर ये सब कह रहे हैं, तो ये इंद्र है वो ग्रुप के। सो जी इंद्र इज ऑलवेज मेल। ये जो पुरुषवादी पद्धति है, ये हमें वहां भी दिखता है सोच। अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो उन्होंने वैसा सोचा तो वैसा सोचा। जी बिल्कुल बाकी उनकी जो पट्टरानियां है, उनका भी हमें आगे ज्योतिष में ग्रंथों में मिलता है कि मिलता उल्लेख, है। इनकी पटरानी है। बिल्कुल, एक सेशन काफी नहीं है जितना फिलोसफी डीप है। तो पॉसिबल नहीं है एक ही सेशन में जान लेना। सर, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था, तो शायद मैंने उसको सही तरीके से नहीं पूछा, तो जिनने क्वेश्चन किया है वो फिर से जी, चाहते हैं कि आप उसका उत्तर दें। सुनेगा तो। हाँ, तो उसका है, मैं जैसे लिखा है मैं वैसे ही पढ़ देती हूँ। My question largely pertains to the varied response of the Jain monks on the issue of Jyotish Shastra. While many of the medieval monks seriously involved themselves
in the practice of Jyotish Shastra, but do you also find accounts of certain Jain monks rejecting such involvement as unsuitable for the monks? देखो, हाँ, अब मुझे पता चला कि आपको क्या कहना है कि स्थानकवासी परंपरा में आज हम, अगर आप यूट्यूब पे तो बहुत सारे प्रवचन हमें मिलते हैं कि कर, तो स्थानकवासी, दिगंबर, श्वेतांबर, इन सभी के जो आचार्य है, जो व्याख्याते हैं, वो जो कुछ है इन्फ्लुएंस जो है उनका, वो कहते हैं कि शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि कर्म पे चलो, कर्म पे चलो, बट बाकी आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजों की प्रतिष्ठा है, कल मंदिर मुझे बनवाना है, बराबर, तो ये वही ज्योतिष शास्त्र के पास जाएंगे और मुहूर्त निकालेंगे, शुभ मुहूर्त निकालेंगे, शुभ लक्षण निकालेंगे कि इस समय पहली ईट रखनी चाहिए, वैसा शायद तक। देखिए, ये मान्यताओं पे है। अगर रिलीजन को अगर देखे, इसकी कॉस्मोलॉजी अलग है, ये हमें पता चलता है कि मैंने पहले ही कहा कि जैन धर्म जो है, जैन और बौद्ध धर्म, ये दोनों इथिकल रिलीजन है। ये आप क्या कैसा आचरण कर रहे हो, इसके ऊपर आपका ये ज्यादा से ज्यादा फोकस उनका है। बाकी आकाश में सचमुच में 2 सूर्य है, 2 चंद्र है, ये इनको एक्चुअली में नहीं है, बट बाकी लेटर पीरियड में ये बनता गया धीरे धीरे धीरे। क्या इसको हम इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, या फिर जो एक मान्यता पहले थी वो चली आ रही थी तो उससे ये इन्फ्लुएंस हुए हैं? देखिए, अभी खासकर जैन ज्योतिष के विषय में अगर कहा जाए तो इसके अंदर मिडिवल जो पीरियड था, और इसके अंदर बहुत इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। जो संहिता का पीरियड चल रहा है, भद्रबाहु संहिता, और आप वराहमिहिर की बृहत संहिता अगर बाजू बाजू में रख ले तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितना साम्य है जी। कि स्वप्न शास्त्र और इसके हिसाब से। सर, आखिरी सवाल है बात के इसमें हमें जी, सॉरी सर, आखिरी सवाल है कि भट्टारक, मैं शायद गलत उच्चारण कर रही हूँ, और यति परंपरा का ज्योतिष शास्त्र की रचना में कैसी भागीदारी है? देखिए, भट्टारक मतलब ये जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मंक्स रहते हैं, ये मंदिरों में रहते हैं। इनको एक नाम दिया गया था शास्त्र में, चैत्यवासी। सो श्वेतांबरों में यति रहते हैं और दिगंबरियों में भट्टारक रहते हैं। इन्होंने भी बहुत स्टडी किया है और इसके ऊपर से वो प्रिडिक्शन करते गए, ऐसा हमें पता चलता है। और उसके ये प्रिडिक्शन कैलकुलेशंस उनकी सही आई, और उनका जो बेस है इन्फ्लुएंस का, वो और बढ़ता गया, ऐसा हमें मिडिवल इरा के अंदर दिखता है। और आज भी आप अगर देखो, खासकर अभी मुझे दिगंबर परंपरा का इतना पता नहीं, बट श्वेतांबर परंपरा से मैं आया हूँ, तो मैं यति परंपरा के बारे में बोलूंगा कि आज भी ये जैन ज्योतिष का ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैलकुलेशंस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। अभी पिछले साल ही त्रिस्तुति गज के आचार्य थे, तो उनका काल धर्म को वो प्राप्त कर गए। तो वो भी बहुत ही बड़े ये थे, ज्योतिष शास्त्र के अंदर विद्वान ऐसे थे। ऐसा जी, ये सब सीखते ही है। जी जी सर, जी। थैंक यू देवेश जी, आपने इन सारे सवालों का उत्तर दिया, और उसके साथ साथ जो पूरी जैन फिलॉसफी है एस्ट्रोलॉजी को लेकर या मान्यताएं हैं उस पर रोशनी डाली। वी आर ग्लैड कि आज आपसे हमारी वार्ता हुई, और चाहेंगे आगे भी आप जुड़े रहें, क्योंकि एक सेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, काफी नहीं है जो इतना डीप फिलॉसफी है उसको समझाने के लिए, और हमारे लिए कि हम उसे एक ही सेशन में समझ या गेज कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक, मुझे भी बुलाने के लिए थैंक यू कि आपने ये अवसर दिया, और सभी ने शांति से ये सुना मुझे, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं और सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो इस सेशन में जुड़े और पूरी वार्ता सुनी और हमसे सवाल पूछे। आई होप आप सबने इस सेशन से कुछ सीख ली होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अगेन।